and welcome to our channel. We all know that existing labor law legislations have been subsumed into four codes. Code on wages, code on social security, code on industrial relation, code on occupational safety, health and working condition. And today our discussion is limited to code on occupational safety, health and working condition of employees and workers. Do watch the video till the end to get the complete overview about the code. Why was there a need for this codification? क्यों हमने इतने सारे existing labor laws को subsume करके एक code बना दिया? Answer to this is simplification, ratification. Simplification कैसे? इतने सारे laws, इतनी सारी definition, इतनी सारी compliances. अब एक ही law है, एक ही code है. उसके अंदर क्या हुआ ना, एक ही definitions, employer, employee, establishment की definition एक ही जगह पर है and you have to follow that. You don't have to go into different laws and get yourself registered like earlier. So at the end, it will lead to ease of doing business, simplification of law. All these laws were also very archaic, बहुत पुराने हो गए थे. बहुत सारे laws तो pre-independence era के हैं. So there was the need of an hour to change it in order to meet the existing condition, the present conditions. वर्किंग कंडीशन बदल गई है, टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो लॉ को चेंज करना भी एक जरूरत थी. एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट थॉट ऑफ सबस्यूमिंग दिस लॉ एंड ब्रिंगिंग चेंजेस that will meet the need for the existing working condition. So now let's just quickly go through the various provisions of this code. So starting with this, so all these laws that you can see on the screen: Factories Act, Contract Labor Act, Mines Act, Dock Worker Act, the Building and Other Construction Work Act, the Plantation Labor Act, the Interstate Migrant Worker Act, Working Journalist, the Working Journalist Fixation of Rate of Wages Act, the Sign Worker and the Cinema Theatre Worker Act, the Motor Transport Worker Act, the Sale Promotion Employees Act, and the Beedi and Cigar Worker Act 1966. So all these laws have been subsumed, and what it leads to, इन सारे laws के अंदर 600 more than 600 provisions थी, जो अब jot down करके सिर्फ 143 provisions रह गई है. तो ये भी बहुत बड़ा change है. इतने सारे provisions को हमने subsume करके काफी कम provisions कर दिए हैं, according to seeing कि अब क्या requirement है. बहुत सारे provisions थे जिसका अब कोई use नहीं था, तो उन सारे provisions को हटा दिया गया है. And now we have a single code and only 143 provisions from earlier more than 600 provisions. अब हम इसमें next बात करते हैं applicability पे. किसी भी establishment के अंदर जिसके अंदर 10 से ज्यादा workers आपने employ करे हैं, you have to follow this code. इसमें exception है. Exception is the mine and dock worker. उनके लिए threshold नहीं है. अगर एक भी worker है, you have to follow. You have to give all the advantages of this code. अब इसमें जो मैंने एक चीज कही, शायद आपने नोटिस करा होगा, वो है 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स और एम्प्लॉइज नहीं. So it is very important, to go further. Before that, we should understand the definition of worker. Worker means any person employed in any establishment to do any manual, unskilled, skilled, technical, operation, clerical, or supervisory work. But it excludes any person who is employed in managerial or administrative capacity or a supervisory capacity when his wages will exceed 18,000. इसका मतलब है वो हर कोई वर्कर है, बट अगर कोई सुपरवाइजर है और उसकी वेजेस जो है 18,000 से इंक्रीज हो रही हैं, then he will automatically come under the category of employee. अगर वो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है तो भी वो एम्प्लॉय होगा और वो वर्कर नहीं होगा. यहाँ पर मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सुपरवाइज करते हैं काम को और आपकी सैलरी 18,000 से ऊपर आ जाएगी तो आप एम्प्लॉय आ जाएंगे. जो एक डिफरेंस जिसके पास बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो because it is very important to understand आप वर्कर हो या एम्प्लॉय हो, तभी आप जान पाओगे आपको कौन से बेनिफिट्स मिलने चाहिए. इफ यू आर अ वर्कर एंड इफ यू आर एम्प्लॉय तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, हाउ टू डिटरमाइन कि आप इसमें फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे टेस्ट लिए हमने, बहुत सारी जजमेंट्स थी पहले भी इसी बात के ऊपर.
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप वर्कर हो या एम्प्लॉय हो. So the definition of employee and worker, it is very important to understand that. अगर आप मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं, आप सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, पर आपकी वेजेस 18,000 से कम है, इन सारी कंडीशंस के अंदर आप वर्कर हैं और आप जितने भी बेनिफिट्स मैं बताऊंगी, मैक्सिमम बेनिफिट्स वर्कर को मिल रहे हैं, तो उन सारे बेनिफिट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन, अगर आप पे कोड एप्लीकेबल है तो दो चीजें हैं, जैसे कि हमने कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में भी देखी थी. अगर आप रजिस्टर्ड कहीं पर भी नहीं है, पहले किसी भी एक्ट में आपने रजिस्टर नहीं कराया है, तो आप श्रम सुविधा पोर्टल, ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, इसमें जाओ, फॉर्म 1 भरो और अपनी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करा लो. अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ है, इन दैट पर्टिकुलर केस यू जस्ट हैव टू अपडेट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. अपने पर्टिकुलर्स को आपको इसी पोर्टल पे जाकर within 6 months from the date on which the code comes into force, आपको अपनी डिटेल्स वहां पर अपडेट करवानी है. अब अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, तो ये मान लिया जाएगा दैट आप रजिस्टर हो चुके हैं. इट विल बी अ डीम्ड रजिस्ट्रेशन. ना इसमें एक और चीज है जो हमें नोटिस करनी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको अपने प्रीमाइस में, मतलब आपका जो प्रीमाइस है वहां पर आपको डिस्प्ले करना है, और ऐसी जगह डिस्प्ले करना है जहां पर हर कोई आराम से उस रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सके. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वन ऑफ द प्रोविजंस दैट यू हैव टू फॉलो इन दिस कोड. यू हैव टू डिस्प्ले योर रजिस्ट्रेशन नंबर एट अ कंस्पिशियस प्लेस दैट एवरीवन कैन सी. ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये आपको कोड भी करना है. कहाँ पे कोड करना है? जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप करेंगे और ऑफिस कंसर्न के साथ. ऑफिस कंसर्न का क्या मतलब होता है? जैसे आपने कोई एनुअल रिटर्न फाइल करी, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपके पास कोई क्वेरी आती है, मतलब नंबर आ चुका है, उसके बाद कोई क्वेरी आती है, आपको कोई एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, आपने कोई रजिस्टर रिकॉर्ड सबमिट करनी है, या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आपसे कोई क्वेरी पूछता है, आपकी कोई इंस्पेक्शन करता है, वो आपको कोई नोटिस भेजता है, आपसे कोई क्वेरी पूछता है, आपको जितने भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे, उन सब के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर कोड करना इज अ मैंडेट. अब जैसे कि कोड भी कह रहा है कि आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन ये प्रोवाइड करेगा, मतलब आपके एम्प्लॉयर को आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, और ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है जहां पे आप आराम से काम कर सकें. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी, तो सेफ्टी, विमेन सेफ्टी की बात यहाँ पर हो रही है. सेफ्टी के और भी प्रोविजंस है, पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो मोस्ट पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं, वो हम विमेन सेफ्टी की कोड बात करते हैं. इसमें क्या, इस कोड क्या कहता है कि एम्प्लॉयर्स आर परमिटेड टू एम्प्लॉय अ वुमेन बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM. यस, मतलब आप सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद एक एम्प्लॉयर एक विमेन एम्प्लॉय से काम करा सकता है, बट उसको ये 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी. एक तो आपको उस एम्प्लॉय का कंसेंट लेना पड़ेगा, इस टाइम के बीच में आपको पिक और ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर आप पे पॉश, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, आपकी एस्टैब्लिशमेंट पे लगता है, तो आपको उसके प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना होगा जब आप बिफोर 6 AM और बियॉन्ड 7 PM एक विमेन एम्प्लॉय को बुला रहे हैं. सो आपको ये सारी कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. वर्किंग आवर्स, अब ये कोड वर्किंग आवर्स के बारे में भी बताता है. एक हफ्ते में 48 आवर्स जो है मैक्सिमम आप काम करा सकते हैं. एक दिन में मैक्सिमम 12 घंटे काम करा सकते हैं, और इन 12 घंटे में हर 5 घंटे के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर का आपको इंटरवल देना है. दैट्स अ मैंडेट इन दिस एक्ट. अब आप जो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट 4 वर्किंग डे वीक. जो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो शायद गवर्नमेंट अभी रूल्स में लेकर आएगी, ये उसकी बात करता है. सो इसके लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर, सो आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं कि कैसे फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, कैसे आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इट इज वीकली हॉलीडेज. मैक्सिमम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 48 आवर्स वीक में काम करा सकते हैं, और मैक्सिमम 6 दिन काम करा सकते हैं. मतलब आपको एक दिन की छुट्टी देनी इज अ मैंडेट. मतलब संडे की छुट्टी दो या सैटरडे की छुट्टी दो, एक दिन की छुट्टी देना इज अ मैंडेट. हाँ, एक्सेप्शन प्रोवाइड करी गई है मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर के केस में. उसमें एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करी गई है कि आप 6 दिन के बाद ज्यादा भी काम करा सकते हो. 6 दिन की आपने छुट्टी नहीं ली, पर इसमें भी एक लिमिट है.
कि मैक्सिमम 10 दिन तक आप इनसे भी काम करा सकते हो, उसके बाद तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। अब आती है बात ओवर टाइम वेजेस की। अगर आपने अपने जो टाइम लिमिट है उससे ज्यादा काम करा तो आपको ओवर टाइम वेजेस मिलेगी। ये वर्कर्स के लिए, नॉट फॉर एम्प्लॉइज। अब आपने जो ओवर टाइम किया है उसमें आपको ट्वाइस द वेज रेट, अगर आपका 60 रुपए का वेज रेट है तो आपको उसमें 120 वेज रेट के हिसाब से आपकी वेजेस मिलेगी, जितना भी आपने ओवर टाइम करा है। ओवर टाइम कराने से पहले आपको उस एम्प्लॉय का भी कंसेंट लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप एक क्वार्टर के अंदर 125 आवर्स ही काम करा सकते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 31 आवर्स इन अ मंथ ही काम करा सकते हैं। ओवर टाइम वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये ओवर टाइम कैलकुलेट कैसे होगा? अगर आपने 15 मिनट काम करा है एक्स्ट्रा तो वो आधा घंटा मान लिया जाएगा। मतलब आपने 15 मिनट काम करा हो या 30 मिनट काम करा हो, उसको हम राउंड ऑफ करके 30 मिनट लेंगे। अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा काम करा है तो उसको हम 1 घंटा मानेंगे। So this is the manner in which the overtime wage will be calculated. अब ये वेज तो हम कैसे ओवरटाइम कैलकुलेट करेंगे, पर इसकी पेमेंट कैसे होगी? अगर मंथली पे हो रहा है तो हमें डेली वेज, क्योंकि एक दिन हमने काम करा उसके अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपकी मंथली वेज को हम 26 से डिवाइड करेंगे। दैट विल बी मंथली वेज इनटू 1/26। तो जो भी वेज निकलेगी, जितने भी घंटे आपने एक्स्ट्रा काम करा होगा, उस वेज का डबल आपको उतने के लिए मिल जाएगा। चाहे आपने 15 मिनट या 30 मिनट काम करा तो 30 मिनट्स के लिए, आपने 1 घंटा काम करा, 2 घंटा काम करा, उसके अकॉर्डिंगली आपको डबल योर वेज रेट, मतलब जो वेज रेट आएगा उसका डबल करके आपको इनटू जितना भी आपने काम करा है आपको मिल जाएगा। एनुअल लीव्स, ये लीव्स ही वर्कर के लिए। एनुअल लीव विथ वेजेस। Every worker employed in an establishment shall be entitled for a leave in the calendar year if we follow the following conditions. वो कंडीशन क्या है? आपको कम से कम 180 दिन काम करना है, 180 days. You have to work for 180 days in a calendar year. अब अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई एम्प्लॉय जिसने 1 जनवरी के बाद या उस दिन ज्वाइन करा है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपने 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डेज काम किया होगा। अगर आपने 1/4 ऑफ रिमेनिंग डेज काम करा है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एनुअल लीव। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी? हर 20 दिन के लिए एक छुट्टी, मतलब जितना भी आपने काम करा है हर 20 दिन के लिए एक छुट्टी, और क्यूमुलेटिवली जितनी भी हो जाएंगी उतनी लीव्स आपको मिलेगी। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन भी है। कोई भी छुट्टी, अगर आपने सपोज छुट्टियां ली हुई है, उसके अंदर कोई संडे आ जाता है, तो वो संडे जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा आपकी एनुअल लीव से। मतलब आपने सपोज 5 दिन की लीव ली, उसमें संडे आ गया तो वो संडे एक्सक्लूड हो जाएगा, आप एक और दिन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पीरियड ऑफ ले ऑफ है, कोई मटर्निटी लीव है, एनुअल लीव है, ये आपने लिए, ये सारी की सारी जो लीव्स है ना, जब वो 180 डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो हम इन तीनों को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, पीरियड ऑफ ले ऑफ को भी, मटर्निटी लीव को भी और एनुअल लीव को भी, व्हेन वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन फॉर 180 डेज। मतलब ये सारे जो है ये इंक्लूजन्स है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सपोज मेरी 50 छुट्टियां बनती हैं, पर मैंने तो सिर्फ 10 ही ली, तो बाकी वेस्ट हो जाएंगी। लॉ ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर दैट। 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी जो है, यू कैन एक्सटेंड दैट। क्या मतलब? दैट मीन्स दैट if suppose you have taken the leave for 10 days और टोटल जो लीव्स है दैट इज 50, तो आप 30 दिन की जो लीव्स है वो नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बाकी 10 दिन के लिए वो वेस्ट हो जाएंगी? नहीं। Now the worker can demand, that means legally demand, to encash that leaves. मतलब जो 30 दिन से ऊपर एक्सटेंड करेंगी उन सारी लीव्स को आप इनकैश करा सकते हैं। 30 जो दिन की लीव्स है वो अगले साल के लिए, मतलब नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर के लिए वहां पर एक्सटेंड हो जाएंगी, और उससे ज्यादा अगर आपके लिए कोई लीव्स बचती है अभी भी, तो उसको वर्कर जो है वो इनकैश करा सकता है। अब जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी वेलफेयर एमेनिटीज के बारे में भी कोर्ट बात करते हैं। कैंटीन फैसिलिटी, अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा वर्कर है इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, देन यू हैव टू प्रोवाइड द कैंटीन फैसिलिटी। अगर आप पहले फैक्ट्री एक्ट्स में देखें तो उसमें 250 वर्कर्स का था अपर लिमिट, सो अब जो लिमिट है वो कम हो गया है। दैट इज ओनली now it is only 100 workers including the contract labor.
क्रैच की बात करें तो अगर आपके यहाँ पर 50 से ज्यादा विमेन एम्प्लॉइज है, देन यू हैव टू प्रोवाइड द क्रैच फैसिलिटी। ये कोड जो है वो फर्स्ट एड फैसिलिटी की बात भी करता है कि अगर आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें सारी एस्टैब्लिशमेंट कवर होती है, कितने भी आपके वर्कर्स हो, 10 से उससे ज्यादा वर्कर्स होंगे जिस पे मतलब ये कोड अप्लाई होगा, उन सारी एस्टैब्लिशमेंट को एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना पड़ेगा, जिसमें नॉर्मल जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, जैसे क्रोसिन होगी, डिस्प्रिन होगी, जो नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन, बैंडेड, ये सब एक जो है वो सारा कुछ आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना होगा, और ये सारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रैच फैसिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम दैट कैंटीन फैसिलिटीज, जिसमें थ्रेशोल्ड है। और ऑब्वियसली जैसे कि ये वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करता है, तो इस कोड में ये भी लिखा है कि एक एम्प्लॉयर ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, ताकि एक हेल्दी वर्किंग प्लेस बन सके फॉर ऑल द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। सो दैट इज ऑल्सो द नीड फॉर दिस कोड। एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन का भी इसके अंदर एक प्रोविजन है। कोई भी एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में, डॉक, माइन या बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क करता है और उसकी एज जो है वो 45 है, 45 या उससे ज्यादा है, तो उसको एक एनुअल हेल्थ चेकअप दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्प्लॉयर को कराना पड़ेगा, और वो भी विद इन 120 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर ऑफ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कैलेंडर ईयर। मतलब विद इन 120 डेज के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कैलेंडर ईयर एम्प्लॉयर को किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर जिसकी एज 45 हो गई है उस, और वो फैक्ट्री में, डॉक में, माइन में, बिल्डिंग या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज्ड है, उन सबको एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन मिलेगा, और इसका प्रोविजन लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें भी होगा। ये इस कोड के अंदर ही प्रिस्क्राइब्ड है। अब ये कोड जो है कुछ और ड्यूटीज भी एम्प्लॉयर को बोलता है, जैसे कि मैंने बात करा ऐसी प्लेस एक जहां पर एक अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम प्रोवाइड करने चाहिए, और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए एक सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, कैंटीन की फैसिलिटी, क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, अगर कोई भी एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अभी तो हमने बात करी थी जो फैक्ट्री, डॉक, वर्क, डॉक में, माइंस में काम करते हैं, पर इस कोड में प्रोविजन है कि आगे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज और भी ऐड कर सकते हैं जिनको एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और एक जो ड्यूटी एम्प्लॉयर की है, इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं मिलते, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज की बात करूँ, नॉट वर्कर्स। अब लॉ मैंडेट करता है कि आपने अपने आज एक एम्प्लॉय अपॉइंट करा है, विद इन 3 months यू हैव टू इश्यू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू दैट एम्प्लॉय। और लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या होगा ये भी जो है कोड में लिखा हुआ है, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पेमेंट, एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोड के अंदर लिखी हुई है, जो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर भी प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करनी है। अब ये जो कोड है ना, एक एडवाइजरी कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। जैसे कि हमने देखा कि जो लेबर लॉस थे वो बहुत पुराने हो गए थे और बहुत टाइम बाद अब एक गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई है, तो आगे ऐसा ना हो, क्योंकि कंडीशन तो चेंज होती रहती है और अब भी सारे नए कोड्स आ रहे हैं, नए रूल्स आएंगे कि इम्प्लीमेंट होंगे, तो हो सकता है प्रैक्टिकली बहुत सारी डिफिकल्टी है। तो दैट्स व्हाई दिस नेशनल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये बोर्ड जो है उसको एड्रेस करेगा, और अगर कुछ चेंज करना होगा, जैसे कि रूल्स में कुछ अमेंडमेंट लानी होगी या फिर कोई कोड में अमेंडमेंट लानी होगी, तो ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा दैट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग दैट चेंज। So for that, this board has been constituted. Apart from this, एक safety committee भी constitute करा सकते हैं। अभी तो एस्टैब्लिशमेंट कोई स्पेसिफाई नहीं हुई है, बट इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि कोड अप्लाई हो जाता है, रूल्स आ जाते हैं, और गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसी कुछ क्लास ऑफ एम्प्लॉइज है जिसमें कोई सपोज 50 वर्कर्स हैं या फिर 20 वर्कर्स हैं, उन्हें लगता है कि ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक सेफ्टी कमिटी जो है ना, वो एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। क्यों? द रीजन इज टू सी, टू कीप अ चेक एंड बैलेंस कि क्या वहां पर ये सारी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन के जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी उन्हें प्रोवाइड करना है, क्या वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। और इस कमिटी के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय के लोग नहीं होंगे, एम्प्लॉयर के भी लोग होंगे, सो देयर विल बी अ बैलेंस।
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इस कमिटीज में होंगे। अभी तो गवर्नमेंट ने कोई भी क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफाई नहीं करी है, बट इन फ्यूचर द गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई, और आपको फिर एक सेफ्टी कमिटी भी एस्टैब्लिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब एक और बहुत अच्छी खबर है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। हमने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स को भी देते हैं, और बहुत से अलग अलग तरह की कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करते हैं, अलग अलग काम होता है उनसे, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ये जो चीज है ये हटा दी गई है, सिंगल लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स कोई भी लेबर, किसी भी तरह की लेबर हायर करे, कोई भी काम करे, किसी भी स्टेट में, दैट इज होल ऑफ इंडिया में करे, सिर्फ एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा श्रम सुविधा पोर्टल पे जाकर, और 5 साल के लिए उनको लाइसेंस मिल जाएगा। अलग अलग लाइसेंस लेने की अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स। ये वाला जो कोड है ये भी रिटर्न और रजिस्टर्स करता है, जैसे कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में था, पर काफी रिड्यूस हो गए। अगर आप वो 13 लॉज में जाके देखें ना, तो उसमें तो इतने सारे रजिस्टर्स रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते थे। अब आपको 3 रजिस्टर बनाने हैं। एक तो आपको लीव का रिकॉर्ड रखना है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी रजिस्टर में आपको डालना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्टर नंबर 10 है। अगर लीव विद वेजेस का जो रिकॉर्ड रखना है वो रजिस्टर 11 में रखना है। फिर एक और रजिस्टर है जो आपको मेंटेन करना है, जिसमें आप वर्कर का नाम, उसकी वेजेस, ओवर टाइम, कोई फाइन लगता है। कई बार क्या होता है कि हम उसकी कोई वेजेस जो होती है कोई डैमेज कर देता है तो उसकी वेजेस को थोड़ा सा काटते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन रखना है। और एक रिटर्न फाइल करनी है। अब कोई क्वार्टरली रिटर्न वगैरह नहीं, ओनली एनुअल रिटर्न। ओनली एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड to the inspector cum facilitator, or that has to reach the inspector cum facilitator not later than 1st February following the end of each calendar year. मतलब 1st February तक आपको एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है। सो ये था रिटर्न और रजिस्टर्स के बारे में प्रोविजन। अब यहाँ पे ना एक वर्ड बार बार हम कह रहे हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये पहले सिर्फ इंस्पेक्टर था, ये फैसिलिटेटर इससे लगाया है कि इंस्पेक्टर एक तो इंस्पेक्ट करेगा, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगा, जाके इंस्पेक्शन भी करेगा एस्टैब्लिशमेंट में जाके। उसके साथ साथ वो जो है ना, वो फैसिलिटेट मतलब वो हेल्प भी करेगा एस्टैब्लिशमेंट को। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हें को लगता है वो नहीं ये चीज कर पा रही, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंस्पेक्टर का रोल थोड़ा बढ़ा दी गया है कि वो उनकी हेल्प भी करेगा। मतलब इंस्पेक्शन तो करेगा, चेक बैलेंस तो रखेगा, बट उनकी हेल्प भी करेगा। नाउ द लास्ट प्रोविजन, जैसे कि सारे कोड, सारे एक्ट, सारे लॉज एक पेनल्टी प्रोवाइड करते हैं, ये वाला कोड भी करता है। अगर आपने इस कोड के अंदर कोई भी नॉन कंप्लायंस करा तो आपका जो फाइन है वो 2 लाख से लेकर 3 लाख तक एक्सटेंड करा जा सकता है। और अगर आपने कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करा, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, कोई रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम होगी, तो आपका फाइन 50,000 से 1 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। So that was all about the code. I hope this video was information. आपको इस कोड के बारे में पता लगा, और इस वीडियो के एंड तक आते आते you have got an broad overview about the code. If you like the if you found this video informative, do like the video, do share the video, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. Thanks for watching.